Hi guys. Hello everyone. Hi guys. My name is Harsh Gagrani. I'm one of the directors of LegalEdge and आज अपना एक थोड़ा सा लेंदी एंड एक्सट्रीमली यूजफुल यूट्यूब लाइव होने वाला है ऑन ऑन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ट्रेंड एनालिसिस। प्रिसाइसली ये चीज हम लोगों ने इसके पहले कभी भी नहीं करी थी, बट recently because a lot of students are appearing for OLETs, which includes AILET, which includes SLAT, LSAT, etc., etc., MHCET। तो मैंने सोचा कि पिछले 5 साल के अंदर प्रिसाइसली हर सेक्शन के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उनका ट्रेंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है, और उससे हम अगले साल का प्रिडिक्शन या इस साल का प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं। एक 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 रीजनेबल प्रिडिक्शन पिछले कुछ सालों के पेपर्स को देखते हुए वो अपन आज करने का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो जस्ट क्विकली चेकिंग इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। आई थिंक इट इज। ठीक है, इट लुक्स गुड नाउ। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा यूट्यूब लाइव होने वाला है, तो फिर तुम्हारा अगर अभी अगले कुछ देर के अंदर खाना वाना खाने का या कुछ प्लान था तो वो पैरेलली कर लेना, करते रहना, बिकॉज दिस माइट गो ऑन फॉर एटलीस्ट 30 to 40 minutes। दैट्स नंबर वन। तीन पेपर्स अपन आज लेने वाले हैं। नंबर वन एलिट, नंबर टू स्लैट एंड नंबर थ्री एमएचसीईटी। ठीक है, और तीनों पेपर्स के पांचों सेक्शंस, तीनों पेपर्स में 5 सेक्शंस आते हैं। तीनों पेपर्स के पांचों सेक्शंस में पिछले 5 साल के अंदर क्या क्या सवाल कौन से टॉपिक से आए हैं और ट्रेंड कैसे चेंज हुआ अपन ये देखेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट right away. Let's start with AILET. I hope this is perfectly visible. So let's start with AILET. And AILET में let's start with the very first section, which is English language. और AILET में English language कम से कम पिछले 5 साल से, और जितना मुझे याद आ रहा है हमेशा से 35 नंबर का रहा है। ठीक है, so 2016 से देखते हैं। So 2016 was the easiest AILET paper till date. आई नो एलिट को हम जनरली इजी से, एलिट एंड इजी आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, पर एक टाइम पे एलिट इजी हुआ करता था, और वो टाइम, वो एरा 2016 में खत्म हो गया था। तो 2016 में जब एलिट कंपैरेटिवली इजी आया था, तब इसमें एक लेंदी बट इजी आरसी पैसेज आया जिसमें 9 सवाल थे। एक आरसी लेंदी था और 9 सवाल थे। देन 9 questions on sentence completion, odd one out, close test, three each on phrasal verbs, other grammar based questions, and one questions on one word substitution. 2017 and 2018 there were no reading comprehension question. Yes, you heard it right. In AILET 2017 and 18 there were absolutely no RC questions, but it was still very grammar heavy. 11 questions on close test, 6 on error spotting, 3 on sentence rearrangement, idioms and phrases, odd one out, synonyms, antonyms, word meanings, etc. 2018, again extremely heavy on grammar. In fact, 2018 I remember it was the first AILET जब जब बच्चे निकले थे बाहर, तो दे हैड वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि एलिट 2008 से लेके 16 तक जैसा हुआ था, 17 उससे बिल्कुल अलग आया था। आरसी नहीं आया वो ठीक है, पर इतना डेप्थ में ग्रामर आया था दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स वर टेकन बाय सरप्राइज। ठीक है, so 2018 extremely heavy on grammar with questions on figures of speech, identification of sentences with current punctuations, word usages, etc. So extremely grammar heavy. 2019 again RCs आए, but it's not very RC heavy. 8 questions RC के आए थे out of 35, 6 each on figures of speech, close passage, 10 on sentence correction, 3 each on synonyms and antonyms and parts of speech. 2020, the most recent AILET paper, last year जो हुआ, जो which was the first AILET paper which was held online, it was conducted by NTA. So there was one RC again with 5 questions, again a little heavy on grammar. So 6 questions on sentence correction, 6 on fill in the blank, 6 on verb, idioms and phrases, odd one out, synonym, antonym, parts on speech. Again, it was heavy on grammar and vocab. यहाँ से अपने लिए लेसन क्या निकलता है? Number one, go extremely heavy on grammar topics. So if you're extremely serious regarding AILET, you cannot afford to let go of the grammar topics and the application of grammar topics. तो जो standard questions हैं जहां पे grammar का application होता है, ensure कि वो उसको अच्छे से करो. Number one, and focus well on vocab too. Pretty much every year there have been questions on synonyms, antonyms, and contextual vocabulary. तो उसमें भी equal focus करो, but grammar, AILET एक ऐसा पेपर है जो कंसिस्टेंटली पिछले करीब 4-5 सालों से ग्रामर बहुत पूछ रहा है। ठीक है, आरसीज यस इंपॉर्टेंट है, बट अमंगस्ट ऑल द एंट्रेंसेस, क्लैट,
एलिट, स्लैट, एलसैट, एमएचसीईटी, आरसी का कंपैरेटिवली सबसे कम इंपॉर्टेंस एलिट में। दैट डज नॉट मीन कि वो नहीं आएगा, 5 साल में से 3 साल आया है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर एंड वोकैब है। ठीक है, सो दिस इज द इनसाइट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ एलिट। ठीक है, अगला legal aptitude and reasoning. Let's start with 2016, the easiest AILET paper till date. 12 principal facts based questions, छोटे लेंथ के थे। आई नो रिसेंटली लगता सर आजकल तो नहीं आते, पर पहले आते थे। 7 questions on assertion reason and remaining questions were on current legal knowledge. तो करंट लीगल नॉलेज एलिट में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, अभी अपन आगे के क्वेश्चंस में भी देखेंगे। बट 2016 कंपैरेटिवली छोटे क्वेश्चंस थे। 17 there were 9 questions on legal reasoning, बट यहाँ पे एलिट अपना लीगल को वार्म अप कर रहा था। अब वो अपना वो जो पूरा अब उसने ट्रेंड बना लिया है ऑफ लेंथी लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। 17 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जब उसने थोड़े से लेंथ उसने बड़ा किया था ऑफ लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। बट अगेन 7 क्वेश्चन ऑन असर्शन रीजन एंड द रिमेनिंग वर ऑन करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज has been pretty consistent as well as assertion reason. 2018, 14 questions on legal reasoning, and it was the first time when AILET introduced extremely lengthy legal reasoning questions. कुछ कुछ सवालों में ऐसा भी लग रहा था कि वो सिर्फ फैक्ट्स बना रहे थे और वहीं उनका मन करा कि यार मुझे 300 वर्ड्स के फैक्ट्स बनाना है। तो लेट्स से मेरे को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो मैं ऐसा लिखूंगा एक पर्सन ए पॉइंट से सी पॉइंट गया, वहां से डी गया, वहां से ई गया, वहां से एफ गया, वहां से 1 गया, वहां से 2 गया, वहां से 9 गया, फिर वहां से बी पहुंचा। तो उन्होंने फैक्ट्स को कहीं कहीं पे ऐसा जैसे पे एज यू गो मॉडल होता है ना, तो उन्होंने फैक्ट्स ऐसे ही बैठे बैठाए लेंथी कर दिए, बट उससे हमारा काम तो बढ़ गया। So 2018 जब लीगल रीजनिंग एलिट का एकदम से बहुत लंबा हो गया, but there were still a lot of questions on legal GK, but it was a combination of static and current legal GK. तो current legal GK एलिट 3 साल, तीसरा साल लगातार current legal GK आ रहा है। ठीक है, 2019 13 questions on legal reasoning, and it was one of the lengthiest papers till date, and the legal reasoning was one of the lengthiest till date. 2018 से भी lengthy legal reasoning questions थे। 2 on assertion reason, 20 questions on current legal knowledge, which were almost entirely current legal knowledge, as in 20 questions on legal knowledge, which were almost entirely current legal knowledge. तो एलिट का हमेशा से मेंटालिटी ये रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आसपास के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर में बहुत इजीली देख सकते हो, आपको वो कितने पता है, राइट? तो आसपास के इवेंट्स कितने पता है, एंड बिकॉज यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, हम मान के चल रहे हैं कि आपको लीगल इवेंट्स जो है उसमें उसके लिए तो आप एक स्पेशल आई रखते होगे। सो दैट इज व्हाई दे हैव ऑलवेज आस्क्ड अ लॉट ऑफ करंट लीगल नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है, कट बैक टू 2020 लास्ट एलिट पेपर, 17 questions on legal reasoning, mostly with lengthy principles and facts, and 18 on legal knowledge, which is mostly current legal knowledge. कंसिस्टेंसी दिख रही है, इसलिए हम लोगों ने एलिट, स्लैट और एमएचसीटी उठाया क्योंकि वो तीनों पेपर्स हर साल सेम अथॉरिटी कंडक्ट करा रही है, तो यू कैन एक्चुअली predict the pattern, so to say. So insights, lengthy legal reasoning questions, they're not going anywhere, very strong chance they should come. Intense focus on current legal knowledge, पिछले 5 साल करंट लीगल नॉलेज आया, पक्का आने वाला है, मान के चलो। एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ असर्शन रीजन क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसके अराउंड 40 50 60 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मतलब इसको रोज बैठ के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, इतने भी कर लिए और लीगल नॉलेज पे फोकस करा तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि असर्शन रीजन इज 20% लॉजिक, 80% नॉलेज। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है उस क्वेश्चन के अराउंड, तो मैं लॉजिक लगा के कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फोकस ऑन assertion reason questions, current legal knowledge, and obviously lengthy legal reasoning questions. ठीक है, चल अगला सवाल, अगला पॉइंट, एक सेकेंड, जस्ट चेकिंग इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ठीक है, सीम्स फाइन। द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग ऑफ एलिट, starting with 2016. Again, simplest period of the last 5 years, 10 standard questions on critical reasoning, 6 para based आए थे, 4 probably true, definitely true, ये questions शायद देखे होंगे आर एस अग्रवाल में, अपनी आरएसएम में और एम के पांडे में। But there were more questions on analytical reasoning. तो they were split between number series, data arrangement, puzzles, और एक सरप्राइज एलिमेंट था 2016 में, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था जो ना उसके पहले कभी आया है ना उसके बाद कभी आया। When the factual situation was given, और एक रिजल्ट दिया था और हाइपोथेटिकल सिनारियोज दिए थे और बताया था कि बताओ अगर ये पूरा सिचुएशन आपको दिया हुआ है और ये सिनारियोज है, तो ये सिनारियोज के होने के चांसेस क्या हैं। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में और पता करना है, जस्ट रेफर टू क्वेश्चन नंबर 136 से 140 ऑफ द एलिट 2016 पेपर। एक बार के लिए उसको सिर्फ देख सकते हो, उससे कोई बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। और ना उस टाइप के क्वेश्चंस कोई स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिए हैं, वो लोगों ने एब्सोल्युटली खुद बनाए थे। ठीक है, बट दिस वाज अ सरप्राइज एलिमेंट ऑफ 2016 पेपर।
17 heavy on AR with just 10 questions on CR out of 35. तो AR बहुत सारा आया था AILET 2017 में, and they were generally split between data arrangement, puzzles, coding decoding, family tree. तो AR में कभी भी अगर क्वेश्चंस आए हैं ना एंट्रेंसेस में, वो बड़े स्टैंडर्ड टॉपिक्स में आए। अगर हम वो टॉपिक्स की थॉरो प्रैक्टिस रखेंगे, family arrangement, coding, decoding, blood relations, which is same as family arrangement, number series, syllogisms. तो we are prepared for pretty much all the entrances. ठीक है, वो अलग अलग एंट्रेंस में अलग अलग मात्रा में आते हैं बस। 2018, now it was slightly balanced between AR and CR. CR के questions थे on para-based, statement series, assumptions, course of action, arguments, assertion, reason, and probably true, definitely true. AR के questions थे which on puzzles, data arrangement, etc. Standard सा था, but it was split between AR and CR. 2019 अब उल्टा हो गया. Now there were a lot more questions on CR as compared to AR. So 5 questions on para-based, on assertion, reason, course of action, assumptions, syllogisms. कुछ questions AR के भी थे, which were on direction, sense, blood relations, clocks, arrangements. So 2017 AR ज़्यादा, 18 balance, 19 CR ज़्यादा, 20 again analytical heavy, वापस CR से AR पे आ गया, and there were questions on puzzles, CR, critical reasoning, data arrangement, family tree, calendars, clocks, coding, decoding, odd one out, statement conclusion, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स। काम की बात, दोनों पे हमें फोकस करना है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि CR ज्यादा आया है, कभी कभी ऐसा हुआ है AR ज्यादा आया है, पर हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल दैट वे। व्हाट इज प्रिडिक्टेबल अबाउट इट इज कि अगर क्वेश्चन आए तो मोस्टली स्टैंडर्ड टॉपिक्स पे आएंगे, जिसको मैं आज से प्रैक्टिस थॉरली कर सकता हूं। समझ में आ गया? दैट्स द ओनली प्रिडिक्टेबल पार्ट अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ AILET। ठीक है, अगला सवाल, अगला सेक्शन, जीके 2016, the easiest one, 22 questions on current affairs and 13 questions on static GK, और generally questions were around international organization, government schemes and economy. ठीक है, but current affairs heavy था comparatively. 17 ये आखिरी बार हुआ पिछले कुछ सालों में कि स्टैटिक जीके का कवरेज करंट अफेयर्स से ज्यादा था 2017 में, जब उन्होंने क्वेश्चन साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्सेट्रा पे पूछे। द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 17 they were majorly from the second half of 2016. थोड़ा सा वियर्ड सा जीके का सेक्शन था ऑफ 2017 का आइलेट। 18 ऑलमोस्ट ऑन क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके। 19 अगेन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके, बट ज्योग्राफी थोड़ा ज्यादा आया था। 20 अगेन मोस्ट क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, पर नाम के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत जीके दिया था और स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे थे। सॉरी, स्टैटिक में ज्योग्राफी क्वेश्चंस पूछे थे, सॉरी साइंस क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। नाउ हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन अ जनरल माइंडसेट शिफ्ट ऑफ AILET, ऑफ CLAT, ऑफ MHCET, ऑफ SLAT, मोस्टली सारे एंट्रेंसेस का, कि हम करंट ज्यादा पूछेंगे और हम स्टैटिक कम पूछेंगे, और वही चीज यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें अपनी पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। क्लियर हो गया? सो स्टैटिक जीके का कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलर पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के अराउंड जनरली ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो हमें ज्यादा फोकस इन सब पे करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वैसे AILET के अगर और डेप्थ में जाके देखना है कौन से क्वेश्चंस आए, तो द पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द AILET वेबसाइट, एंड इफ यू जस्ट गूगल तो तुम लोगों को सारे पेपर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? सो दिस इज द जनरल ट्रेंड एनालिसिस ऑफ AILET ऑफ GK। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन व्हिच इज मैथमेटिक्स 2016। अब 16 से लेके 20 तक का पढ़ो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, रीड इट कंप्लीटली, खुद एक बार देखो, तुम लोगों को खुद ट्रेंड समझ में आ जाएगा AILET ने मैथ्स में क्या ट्रेंड फॉलो करा है। रीड इट फॉर योरसेल्फ प्लीज। समझ में आया? एवरी ईयर देव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। उन्होंने वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक्स उठा लिए, वो सबसे एक दो एक दो एक दो बस इतना सवाल पूछते रहते हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स टॉपिक्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम एंड वर्क, SICI, रेशियो, प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, मेंसुरेशन, TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वही है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रेगुलर 10 12 13 टॉपिक्स हैं, बस इनको अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है एक टाइम मैनर में। मतलब कैसे, बिकॉज एलेट में वन इशू, बिकॉज नाउ सिंस द लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस आर लेंदी, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इन सब से क्या होता है, वो पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और उसके चक्कर में सबसे ज्यादा बली चढ़ती है मैथमेटिक्स की। तो अगर हम और एलेट में every 0.25 mark is extremely important, which means we cannot afford leaving the complete section or leaving even a couple of questions. So that is why while practicing elementary mathematics, ensure that you are focusing equally well on time also. So ensure that while number one, while practicing mathematics, time manner में करो, and number two, जब मॉक कर रहे हो, ensure कि 7 8 9 मिनट कम से कम मैथमेटिक्स के लिए एलिट में लगा के रखो, उसको अलग से बचा के रखो प्लीज। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? सो इट दिस सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट दैट वे, बिकॉज उन्होंने हर साल यही करा है कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक दो दो सवाल। सो बस ये हमारा एलिट का स्ट्रैटेजी रहेगा। So we're done with AILET. Hope this was useful. Now we're moving on to the next examination. I'm sure you're preparing for this examination also, which is SLAT. Now एक चीज, ये इस पूरे के ऊपर we did research for at least 3 to 4 hours and we prepared a document, जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में भी तुम लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। तो अभी मैं कंटेक्स्ट के साथ बता रहा हूँ, तब तुम्हें अलग से भी रेडी रेकनर मिल जाएगा। तो इफ यू वांट दैट, तो चैट विंडो पे लिख देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दे देंगे, ठीक है? पर पहले कंटेक्स्ट के साथ ये पूरी चीजों को सुनो। स्लैट ये 2017 या 18 तक ये सेट था, सेट लॉ, सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट लॉ। बाद में ये सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट बन गया, तो अपन स्लैट नाम ही यूज कर रहे हैं शुरू से। SLAT 2016. Let's start with the first section, which is reading comprehension. The section name here is not English, it's reading comprehension. वो सिर्फ RC questions देते हैं. Again, pretty consistent. 16, 6 easy RCs of 5 questions each, mostly short in length. 17, 6 easy RCs of 5 questions each, जिसमें कुछ synonym antonym के questions, कुछ vocab के questions, पर maximum questions contextual passage based थे, ऐसा था, ठीक है? पर वो 6 RC of 5 question, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर के sections होते हैं। 18, 3 RCs with 5 questions each and 2 थोड़े से lengthy RCs with 7 8 questions each, but again only RCs. 19, it comprised of 6 RCs, जिसमें से 5 तो थोड़े छोटे थे, एक थोड़ा ज्यादा ही कुछ बड़ा था, ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स का। क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं थे। तो अभी तक चारों पेपर्स में स्लैट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आए हैं, सारे आरसीज आए हैं, जनरली छोटे आरसीज आए हैं, और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आए, ठीक है? स्लैट 2020 बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ये जो टेस्ट था ये घर से लिया गया था, इट वाज होम प्रॉक्टर्ड, और 3 दिन के अंदर उन्होंने कराया था। तो तीनों दिन में देवर स्लाइड चेंज इन क्वेश्चंस, बट मैं एक ब्रॉड पैटर्न बता रहा हूं। एंड अब ये सेक्शन चेंज होके 30 की जगह 15 क्वेश्चन पर सेक्शन हो गया था। सिम्बाइसिस के पांचों सेक्शंस 30 की जगह 15 क्वेश्चंस के हो गए थे, इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो पिछले साल देवर 3 RCs on 5 questions each, and they were majorly around sociology, politics, and economy, and the questions were mostly direct, and the vocab was also contextual. Again, they were on an easy side. इसका मतलब ये हमें सिर्फ बहुत सारे आरसी की प्रैक्टिस करनी है सिम्बाइसिस के लिए, और उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना शॉर्ट आरसीस पे। ऐसे आरसीस, क्योंकि हम लोग क्लैट के लिए एंड इवन एलसैट के लिए हम थोड़े से लेंदी आरसीस प्रैक्टिस करते हैं। शॉर्ट आरसीस और लेंदी आरसीस को करने का बहुत बार तरीका चेंज हो जाता है, राइट? एंड माइंडसेट चेंज होता है। तो फोकस और लॉर्ड ऑन स्लाइटली शॉर्ट आरसीस आल्सो। सो दिस वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर स्लैट, ठीक है? फॉर द इंग्लिश, फॉर द आरसी सेक्शन ऑफ स्लैट। The next one, guys, I'll just ask for some water. I think we have it. Just a second. Okay. Next. Now the next one is the GK section of SLAT. Now, जो GK section है, उसमें 16 there were more questions on static GK and less on current affairs. Static questions were majorly from miscellaneous, world geography, history, polity. थोड़ा सा current legal knowledge उन्होंने GK में भी दिया था. So this was in 2016. More questions on static GK. 17 के बाद से इन्होंने काफी पैटर्न में चेंज करा है, एंड जनरली स्पीकिंग दिस हैज बीन मोर करंट अफेयर्स एंड लेस ऑफ स्टैटिक।
17, 5, 6 questions on starting and rest were from current affairs. Questions were from pretty much all the common and important topics. Okay? But more on current, less on static. 18, again, extremely high on current and less on static. So heavily dominated by current affairs. Most of the questions were on national, international awards, world news and forums, personalities, sports, science and tech. जो regular current affairs हम लोग वैसे ही पढ़ते रहते हैं, practice करते रहते हैं. Most questions उसी type के थे. Standard to the point current affairs questions. कुछ questions, 3-4 question उन्होंने static GK में out of 30 पूछे थे. 2019 again dominated heavily by current affairs. 25 questions current के थे out of 30. And they were split between world news, government schemes, awards, personalities. Again, regular current affairs जो हम पढ़ते रहते हैं. ठीक है? 20, again, जब 15 questions का section था because of pandemic. यहाँ पे इन्होंने अगर अपन सिर्फ percentage wise देखें तो static थोड़े ज्यादा पूछ लिए. But that does not mean that static has made a comeback. Because there were just 15 questions. अगर आप 5 भी static पूछ लोगे तो 1/3 हो जाएगा. So again, I would suggest focus more on current affairs, a little bit of static. Generally, the miscellaneous news, standard topics like books and authors, international organization, हल्का फुल्का हम ये static का पढ़ लें, which is more around static of current affairs. उससे हमारा काम हो जाएगा. And current affairs की जो regular current affairs की तैयारी होती है, जो हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम सारे मॉक्स दे रहे हैं, जो हम रेगुलर जीके वेबसाइट्स लाइक जीके टुडे, क्लाउड अफेयर्स से जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उससे हमारा सिम्बाइसिस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है? आई होप ये क्लियर है. द नेक्स्ट वन, सिम्बाइसिस का लीगल रीजनिंग. नाउ यहाँ पे एक बड़ी बड़ी विचित्र सी बात है जो शायद कुछ लोगों को पता होगी, पर नहीं तो अभी ट्रेंड एनालिसिस में समझ में आ जाएगी, which is most of the questions of legal reasoning section of the legal reasoning of legal reasoning section of SLAT have been without principles. देखते हैं. 2016 14 क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ एक में प्रिंसिपल था, 13 क्वेश्चंस वर विदाउट प्रिंसिपल्स, जस्ट द फैक्ट्स एंड द ऑप्शंस. सो इट इज मोर लाइक लीगल नॉलेज क्वेश्चंस क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया था. And there were few questions on static legal knowledge and assertion reason also. 2017 16 questions on legal reasoning out of 30, जिसमें से 13 में प्रिंसिपल्स नहीं थे, सिर्फ 3 में प्रिंसिपल्स थे. रिमेनिंग अगेन assertion reason and static legal knowledge. Static legal knowledge मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जनरली लॉ से कनेक्टेड चीज है, ये सब स्टैटिक लीगल नॉलेज में आ जाता है. ठीक है? 2018 25 क्वेश्चंस ऑन लीगल रीजनिंग, एक्सट्रीमली हेवी ऑन लीगल रीजनिंग. सिर्फ 23 में प्रिंसिपल्स थे. अच्छा, यहाँ पे ज्यादा में प्रिंसिपल्स थे एंड 2 वर विदाउट प्रिंसिपल्स. एंड 4 क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक लीगल जीके एंड असर्शन रीजन. काफी कंसिस्टेंट मामला चल रहा है. 3 टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, लीगल रीजनिंग, असर्शन रीजन, लीगल नॉलेज. 2019 पिछले बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने लीगल रीजनिंग को ही टोन डाउन कर दिया. एंड 22 आउट ऑफ 30 22 क्वेश्चंस वर ऑन लीगल नॉलेज. समझ में आ रहा है? कोर लीगल नॉलेज, जिसमें से स्टैटिक लीगल नॉलेज भी था एंड अ लिटिल बिट ऑफ करंट लीगल नॉलेज आल्सो. 7 क्वेश्चंस वर ऑन लीगल रीजनिंग, किसी में प्रिंसिपल्स नहीं थे, एंड असर्शन रीजन. चारों साल असर्शन रीजन कंसिस्टेंट रहा है, भूलना मत. और अपने एलेट के लिए भी असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत. 2020 अगेन 15 क्वेश्चंस का था, एक्सेप्ट अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन लीगल नॉलेज, जिसमें से 2 वर ऑन स्टैटिक जीके, ऑन करंट लीगल नॉलेज सॉरी. रिमेनिंग क्वेश्चंस वर ऑन लीगल रीजनिंग. तो 15 में से 3-4 क्वेश्चन लीगल नॉलेज के, जिसमें से आधे करंट लीगल नॉलेज, आधे स्टैटिक लीगल नॉलेज, और 10-11 क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग के, प्रिंसिपल्स नहीं. सो व्हाट आर द इनसाइट्स हियर? प्रैक्टिस लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस विदाउट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड टॉपिक्स. अभी कौन से टॉपिक से आए? स्टैंडर्ड टॉपिक्स. टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स, अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो स्टैंडर्ड जो क्लैट में भी पहले आया करता था ना, ये उन टॉपिक से ज्यादा है, तो उनको हमें अच्छे से पढ़ना है. नंबर 1. एंड रेगुलर करंट लीगल नॉलेज की जो प्रेप है वो यहाँ पे मदद करेगी, बट प्रैक्टिस असर्शन रीजन ऑल्सो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और क्लैट में भी इंपॉर्टेंट. क्लैट में हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, एलेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद से कर लेना. ठीक है? अगला सवाल, अगला टॉपिक, स्लैट का लॉजिकल रीजनिंग. स्लैट में नाम के लिए मैथमेटिक्स नहीं आता है, और मैथमेटिक्स एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है, तो वो भी उसके नेक्स्ट स्लाइड होगा. तो यहाँ पे रीजनिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है? तो स्लैट 2016 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट वाज ओनली फ्रॉम अरेंजमेंट्स, डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन से 30 में से 14,
and remaining were split between critical reasoning paragraph based statement and strong and weak arguments, cause and effect, probability, odd one out, direction sense, standard critical reasoning and standard analytical reasoning topics. पर आधा ऑलमोस्ट डेटा अरेंजमेंट था 2016 में। 2017 इट बिकेम हेवी ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, ज्यादा क्रिटिकल आ गया लॉजिकल के अंदर, with maximum questions on cause and effect, assumptions, conclusion arguments, and there were a few questions from coding, decoding, direction sense, relations, etc., blood relations, etc. 2018 वापस comeback हुआ analytical reasoning का with 5 questions on coding, decoding, analogies, odd one out, family tree, और कुछ questions से data sufficiency, puzzles and calendar के, extremely heavy on analytical reasoning. 2019 again more AR than CR, 2018 जैसा, and unlike 2017, तो 2019 more AR than CR. CR के कुछ क्वेश्चंस थे वो कंक्लूजन पे एंड कोर्स ऑफ एक्शन पे, और AR वर अराउंड रेगुलर टॉपिक्स, सो एनालॉजी, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, फैमिली ट्री, पजल्स एक्सेट्रा, स्टैंडर्ड AR टॉपिक्स. स्लैट 2020 अगेन 15 क्वेश्चंस वाला, मोर AR देन CR. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑन द स्टैंडर्ड टॉपिक्स जो 2019 में भी आए थे. कौन से ऊपर? सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, पजल्स, फैमिली ट्री, इन सब शायद. इनसाइट्स दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बट जनरली यहाँ पे AR CR से ज्यादा आया है, और CR जब आया है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है. assumptions, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट. जब CR आया है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन CR के कर लेना, एंड AR की जो रेगुलर टॉपिक्स है जो अपन AILET के लिए भी कर रहे हैं उसको अच्छे से कर लेना. क्लियर? चल क्लियर है? जस्ट सेकेंड. ठीक है. द नेक्स्ट वन नाउ, एनालिटिकल रीजनिंग. नाउ विडंबना ये है, विचित्र बात ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग तो सिर्फ एक नाम का है. हम अगले 5 साल में देखेंगे कि 2016 से लेकर 2020 तक कि यहाँ पे इन्होंने कैसे एनालिटिकल के नाम पे बच्चों को खुश करके कि यहाँ पे मैथ्स नहीं आने वाला है, उन्होंने बहुत सारा मैथ्स दिया है. Let's see. 2016 started with a little bit of maths here, with questions on time and works, SICI, averages, ratio proportion, etc. And remaining जो सवाल थे वो standard AR topics के थे. Series, coding, decoding, clocks and calendars, probability, cause and effect, etc. cause and effect CR हो गया, पर regular AR के थे. 2017 फिर मैथ्स आ गया. ऐसा लगा होगा पिछले बार शायद गलती से दे दिया, एब्सोल्युटली गलती नहीं थी, क्लियर स्ट्रैटेजी थी. फिर मैथ्स आ गया. देयर वर क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी, एजेस, PNL, नंबर सिस्टम, एंड AR क्वेश्चंस वर फ्रॉम कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, डायरेक्शंस, रेगुलर AR टॉपिक्स. 2018 इस बार इन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया क्योंकि इन्होंने AR में मैथ्स नहीं दिया, जो उनको वैसे भी नहीं देना चाहिए था, बट पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने नहीं दिया. एंड अबाउट 25 क्वेश्चंस वर ऑन AR. जस्ट अ सेकेंड. And there were 25 questions were कहाँ थे यार अपन? 2018 no maths topics this time, but there were 25 questions on AR and 5 questions on CR. CR were majorly around assumptions, strength and weaken, argument and inference. AR were around the standard AR topics, puzzles, analogies, series, etc. 2019 maths makes a comeback, and how? Ah, फाड़ू comeback करा maths ने. 16 maths oriented questions out of 30. You heard it right. There were 16 maths oriented questions in the AR section of SLAT out of 30 in 2019. And they were on ratio proportion, profit and loss, averages, ages, time and work, partnerships, etc. बाकी questions regular AR topics से. 20 maths stays, maths कहीं नहीं गया. Questions in profit and loss, averages, percentage, and rest of the questions were around number series, blood relations, and calendars. यहाँ से क्या सीखा हमने? Don't ignore elementary maths prep for the AR section of SLAT. They've appeared pretty much every year. For the rest, the regular AR prep. मतलब जो रेगुलर हम पढ़ाई कर रहे हैं सारे एंट्रेंसेस के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स की वो करना है. बट अगर स्लैट को लेके सीरियस हो तो जो रेगुलर एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वो पिछले 5 में से 4 साल आए हैं, और एक साल तो बहुत हैवी आए हैं, मोर देन 50% आए. उसको इग्नोर मत करना. क्लियर? सो फॉर द स्टूडेंट्स जो स्लैट की तैयारी कर रहे हैं, होप द लास्ट 15 odd minutes
were extremely useful. Uh, if it were, do like the video and do subscribe to the LegalEdge channel. And um, if it was not, तो please add in the comment box कि उसको और कैसे improve कर सकते हैं हम लोग. And if you're preparing for MHCET, please stay back. The next 20-15 odd minutes अपन MHCET की बात करेंगे. स्पेशली क्योंकि MHCET का प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पेपर देते नहीं है. कंपैरेटिवली एग्जाम नया है. 2016 में तो एग्जाम चालू हुआ था. वो 2016 के पहले हर साल ये लोग ये करा करते थे. 2016 के पहले they did not conduct their examination, but वो 12th के परसेंटेज के बेसिस पे दिया करते थे. तो GLC, ILS, ये जनरली इनका कट ऑफ 93, 94, 95% जाया करता था. दैट्स हाउ इट वाज. ठीक है. तो MHCET 2016 में चालू हुआ, और क्या गुल खिला MHCET ने ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स पांचों सेक्शंस में. लेट्स सी. English 2016, the first paper MHCET का, there were one passage of 5 questions of RCs, and there were questions on jumbled paragraphs, there were questions on para completion, grammatical errors, fill in the blanks, word substitution, etc. एक रेगुलर सा स्टैंडर्ड सा इंग्लिश सेक्शन. ठीक है. 2017, one RC of 350 words each, again of 10 questions. तो थोड़ा सा लंबा था और 10 सवाल का था, पर फेयरली इजी था. 5 questions on parajumble, spotting the error, close test, word replacement, etc. More of a standard question. जैसे एलिट में क्या हो रहा था, ग्रामर थोड़ा हेवी आ रहा था. यहाँ पे उन्होंने सबका बैलेंस बना के रखा इंग्लिश में. 2018, एक्सट्रीमली इजी सेक्शन. इंग्लिश है एक्सट्रीमली इजी कभी आता नहीं, पर 2018 के सारे क्वेश्चन बच्चों से बन रहे थे. एक्सट्रीमली इजी सेक्शन. एक आरसी जिसमें 10 सवाल थे अगेन, तो मतलब छोटा आरसी विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस. 4 questions on phrase correction, parajumble, spelling errors, etc. Standard English topics. 2019, 2 RC passages आ गए, 500 words के. एक moderate था, एक easy था. तो थोड़ा सा lengthy RC आ गया 2019 में. The remaining questions were on fill in the blanks, error spotting, sequence of sentences, phrasal verbs, etc. So a little bit heavy on grammar, but ऐसा एक तरफा नहीं था AILET की तरह. 2020, रेगुलर पेपर हुआ था. इनने अपना पैटर्न को छोटा नहीं करा था. So 2 RC passages with 13 questions in total, and the rest of the paper was heavy with grammar. इस बार grammar heavy आया पिछले साल, with questions on error spotting, phrase replacement, sentence completion, etc. So regular practice of a lot of questions and a little bit teeny weeny extra practice on grammar, क्योंकि वो AILET में ही मदद कर लेगा अपने को. ये अपने को करना चाहिए. और रेगुलर बुक्स, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर एलिटियंस. सो RSM से जो अपन कर रहे हैं, या क्लासेस में जो अपन कर रहे हैं, या GMB से जो किया, या क्लैटलिस्ट से जो किया, वो प्लस इंग्लिश इज इजी टाइप की अगर कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, काम हो जाना चाहिए हम लोगों का. ठीक है. सो दिस वाज इंग्लिश ऑफ MHCET. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जस्ट अ सेक. ठीक है. द नेक्स्ट वन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स MHCET का. सो 16 से लेके अभी तक वो 30 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हर साल. 30 में से 25 करंट अफेयर्स, 5 स्टैटिक जीके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. 2017, 15 are almost the equal number of questions on current affairs and static GK. And again, the questions were not कि बहुत डेप्थ में या कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट इजी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. तो उसके लिए भी अपने को पढ़ना तो पड़ेगा. बहुत ज्यादा सिंपल नहीं थे, पर ऐसा नहीं कि हमें लेवल 2 लेवल 3 जानकारी होनी चाहिए. लेवल 1 जानकारी से भी काम हो जाएगा. 2018, अगेन इन इजी सेक्शन, बट करंट अफेयर्स का उन्होंने बढ़ा दिया. There were questions around ISRO, national games, वज्र प्रहार, joint military exercise, etc. जो उस साल के prominent events थे, उन सब पे straight forward questions आए. 19 स्टैटिक जी के थोड़ा ज्यादा आया. जितना स्टैटिक जी के नॉर्मली आता है उससे थोड़ा ज्यादा 19 में आया. which are a mix of, which also contained static legal जी के. तो जो स्टैटिक लीगल जी के जो हम स्लैट में पढ़ते हैं, या फिर जो हमने AILET के लिए भी हम पढ़ेंगे या पढ़ा है, वो यहाँ पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए. करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे इस साल के, तो इसमें थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 वाली जानकारी एक्सपेक्ट करी गई थी. सो स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. 2020, most of the questions, almost what, 80% of the questions were on current affairs. 6 questions were on static GK. And I think दूसरे बार ऐसा हुआ, मैंने एक चीज मिस कर दी. 2017 में देखो, there were questions based on current affairs connected to महाराष्ट्र. थोड़े ज्यादा सवाल थे रेगुलर से. 2020 में भी ये हुआ, महाराष्ट्र से कनेक्टेड करंट अफेयर्स पे थोड़े ज्यादा सवाल है. नंबर 1,
इट इज MHCET, तो मैक्सिमम महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए. नंबर टू, because the paper is also conducted in Marathi and automatically more Maharashtrians give it, तो they expect कि आपको वहां का तो पता होगा. तो my suggestion would be there is a tendency of MHCD to ask static GK questions. Ensure कि थोड़ा बहुत पढ़ाई static GK कर लो एंड करंट अफेयर जो रेगुलर पढ़ाई है उससे हमारा काम हो जाएगा. बट MHCD के लिए पिछले 6-8 महीने में महाराष्ट्र से कनेक्टेड, महाराष्ट्र में जाके वहां की न्यूज को बहुत डेप्थ में ऐसा कुछ नहीं करना है. महाराष्ट्र से कनेक्टेड अगर कोई रेगुलर न्यूज अगर अलग से न्यूज में है, अगर कुछ कुछ रेगुलर कुछ भी अगर न्यूज में है, वो हमें पता होना चाहिए. क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ताकि ये क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो कि दूसरों को अपने से ऊपर एज मिल जाए. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर MHCT. ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सही कंटेक्स्ट में लेना. बहुत डेप्थ में नहीं, पर प्रोमिनेंट इवेंट्स याद कर लेना. द नेक्स्ट वन, लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड. जस्ट अ सेकेंड. Now, the next one is the legal reasoning and legal aptitude of MHCET. पांचों साल एक भी सवाल लीगल नॉलेज पे नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस. सो प्रिंसिपल फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स, नो क्वेश्चंस ऑन लीगल नॉलेज. बट कुछ और चीजें भी नोटिस करने की है, ध्यान से सुनना. 2016, all the 40 questions on legal reasoning, slightly high level of difficulty, intellectual property, consumer protection, torts, contracts, इन सब पे भी पूछा. 2017 कन्वेंशनल टॉपिक्स पे भी पूछा, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स. थोड़े से अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे भी पूछा, फैमिली लॉ, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, एक्सेट्रा. 2018 40 में से 21 क्वेश्चंस, मोर देन 50%, जस्ट ओवर 50% क्वेश्चंस वर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉस. तो कॉन्ट्रैक्ट के वो जो थोड़े टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल फंडे होते हैं ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, कब वो प्रपोजल कंप्लीट हुआ, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ, वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइडेबल, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, वो सब थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से अगर MHCT की तैयारी कर रहे हो तो. कॉन्ट्रैक्ट के इन्होंने ज्यादा सवाल पूछे हमेशा. ठीक है, सो 21 क्वेश्चंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अलावा क्राइम्स, पार्टनरशिप, मिसलेनियस, इन सबसे भी पूछे. 2019 में अगेन कोई लीगल जीके अभी भी नहीं आया बेचारा. 2019 में भी लीगल रीजनिंग हैवी रहा. कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे सवाल हैं, टॉर्ट से भी सवाल हैं, और मिसलेनियस लॉस. और पिछले साल भी यही हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे सवाल हैं, टॉर्ट से भी हैं, पर इन्वायरमेंट, IPR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज अ कंप्लीट लीगल रीजनिंग शो. यहाँ तो कोई लीगल नॉलेज नहीं अगर MHCT को लेकर सीरियस हो. तो लीगल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग चांस की अच्छा खासा आएगा. बट जो हम क्लैट में अपने लीगल नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम कॉपीराइट पे भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम फैमिली लॉस पे भी पढ़ रहे हैं, वो यहाँ काम आ सकता है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स आ सकते हैं. तो एक इसका भी ध्यान रखना जब इसकी प्रैक्टिस करो तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमें थोड़े बहुत पता हो. MHCT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे नहीं, तो तुम्हें इसी के बेसिस पे ही डिसाइड करना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करो क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अलग नहीं आए. वो रेगुलर क्वेश्चन जो हमेशा से क्लैट, एलेट सालों से पूछता आ रहा है ना, वो ही सारे. तो क्लैट और एलेट के प्रीवियस क्वेश्चन अपने को मिल जाते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. Eletians, you already have it on your portal, topic wise and section wise. Non-Eletians, you'll surely get it on in the cyberspace. ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना. ये है अपना लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्विक एनालिसिस. अगला, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग नाम से सेक्शन होता है इनका. So 2016 it was well balanced between CR and AR. दोनों आया था, CR भी आया था, AR भी आया था. AR was more around circular arrangement, 10 questions on circular arrangement, 4 to 5 questions on coding, decoding, family tree and directions, and CR के वही standard statement based topics, assertion, reason, course of action, syllogisms, and a little bit of paragraph based questions also. 2017 ज्यादा AR आया था जिसमें standard data arrangement questions, कुछ syllogism के questions भी थे, inequalities, family tree, directions, etc. 2018 थोड़ा डिफिकल्ट उन्होंने ज्यादा कर दिया, पर AR अभी भी कंसिस्टेंट रखा. मोर AR देन CR इन MHCET. मोर AR देन CR इन MHCET. Questions were on direction sense, arrangement, blood relations, syllogisms, puzzles, etc.
2019 अगेन मोर एआर, तो 2016 में उन्होंने सीआर काफी पूछा, उसके बाद वो एआर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड डेटा अरेंजमेंट, और उसमें से एक डेटा अरेंजमेंट का मुझे सेट याद है, इट वाज सपोज टू बी लेफ्ट। पता है ये एलिट शुरू में बहुत करा करता था, 2012 13 14 के अराउंड, 11 के अराउंड, वो एक ना एक ऐसा सेट देता था जो सिर्फ आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करना चाहता है। डिसीजन मेकिंग मतलब आप इसको छोड़ सकते हो कि नहीं, आप ये कितना सोच रहे हो कि मैंने 4-5 मिनट दे दिया तो अब तो मैं कर ही लेता हूं, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, दिस इज व्हाट दे वांटेड टू चेक। सो सिमिलरली 2019 में उन्होंने एक ऑलमोस्ट अनक्रैकेबल डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया था, and there were other questions on syllogisms, family tree, linear arrangement, puzzles, etc. 2020, two sets of 5 questions on seating arrangement, two sets of 5 questions on puzzles, coding, decoding, blood relation, syllogism. 100 बातों की एक बात, ज्यादा एआर कम सीआर, 17 18 19 20 एआर ज्यादा रहा है, सीआर कम रहा। क्लियर, समझ में आ गया? So thorough practice on the AR of the AR topics, which is anyway important for SLAT, which is anyway important for AILET, is also important for MHCET. It's less important for CLAT. In CLAT, CR is more important. But जो हम काफी बार सुन चुके हैं, in all the other entrances, AR is more important. And the last one of MHCET is mathematics. Again, इन्होंने भी थोड़ा सा पॉलिसी अपनाई है AILET वाली, एंड द पॉलिसी इज बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर एक दो सवाल पूछ लो। सो 2016 से लेके 20 तक देखो, 10 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ सिर्फ 10 सवाल आते हैं, पर देखो कितने सारे टॉपिक से आ जाते हैं। सो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, नंबर सीरीज 2016 2017, अरिथमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन से SICI, TSD, एलिगेशन मिक्सचर, मेंसुरेशन, एवरेजेस 2018, अगेन एन इजी मैथ सेक्शन, आयरनी, इजी मैथ सेक्शन, अगर इजी है तो मैथ्स कैसे हो सकता है, मैथ्स है तो इजी कैसे हो सकता है, पैराडॉक्स। But the questions were there on averages, data sufficiency, upstream, downstream, etc. Again, simple elementary mathematics on Venn diagram, quadratic inequalities, ratio proportion, PNL, TSD, time and work. And 2020, same SICI, speed and distance, data sufficiency, data sufficiency, PNL, etc. मतलब मैथ्स में जो एलिट की तैयारी का स्ट्रैटेजी है वही एमएचसीटी पे अप्लाई करेगा। मतलब 10-12 जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, बहुत डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को पर लिमिटेड टाइम में करने की। यहाँ पे टाइमिंग का खेल ज्यादा होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं इसका खेल कम होता है, यहाँ पर हमें बन तो जाते हैं पर उसको लिमिटेड टाइम में करना ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस बोथ फॉर एमएचसीटी एंड एलिट इन द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। 3 पेपर्स का डेप्थ में जाके कायदे से अच्छे से फैक्चुअल तरीके से ट्रेंड एनालिसिस अपन ने किया, और हर सेक्शन का अपन ने निकाला कि काम की चीज क्या है, क्या उसमें अपने को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर हेयर, दिस इज समथिंग जो हमें थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकता है कि मैं किस पे ज्यादा है किस पे कम करूं। इस बेसिस पे हमें ये नहीं सोचना है कि मैं ये पढ़ूंगा और ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं, हमें ये सोचना है कि मैं क्या ज्यादा पढ़ूंगा और क्या कम पढ़ूंगा। ये ज्यादा कम के लिए था, ये पढ़ना और नहीं पढ़ने के लिए नहीं था, एंड टेक इट दैट वे ओनली। ठीक है, सो hope this was useful. If it was, do subscribe to the LegalEdge channel and do like this video. And in case तुम लोगों को वो डॉक्यूमेंट चाहिए जहां पे ये सब चीजें एक जगह पे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हो, just write in the comment box. It'll take us a couple of days to make that, but we'll surely make it and share it with you guys. ठीक है, so thank you so much. Take care. Bye bye. Good night. पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, एंड यूट्यूब के पे लीगल एज के वीडियोस देखते रहो। प्रीटी मच एवरी डे कोई दिन क्विज कर रहे हैं, कोई दिन ऐसे वीडियो बना रहे हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा है। मनु सर was not there for a few days, that's why न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी नहीं हुआ। I think it'll resume very soon, either tomorrow or day after, and that's it. And pretty much on all these things we even launched rapid revision, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं even for OLETs. So if you have not yet subscribed for that, do subscribe for it. The link is also there in the description below. So the classes have already started of rapid revision. It's a month-long course. Okay, so do come for that also. You'll definitely gain a lot out of it. Okay. So thank you so much, guys. Take care. Bye bye. Good night. See you guys very soon.
This is Harsh Bagrani signing off. Bye. Good night.